Today is a Purnima and it is the month of Vaishak. So on today we have basically we are gathered here to celebrate the Buddha Shakyamuni's birthday all over India or for that matter all over the world. And today is a day when Buddha Shakyamuni's birthday is concerned. Today is his birthday as well as Buddhahood. Today is also a day that Buddha Shakyamuni achieved his Buddhahood in Bodh Gaya. And today is also a day when Buddha Shakyamuni achieved Parinirvana in Kushinagar on this day. So Buddha, as you know, Buddha's message of Karuna, Ahimsa and Maitreya is so relevant in this world today, in this world of so chaos, that Buddha's message of peace and Karuna is so relevant, and we are so fortunate that in India, Buddha Shakyamuni came around 2,600 years ago and spread this message, which is so relevant even in today's world. And for that, we have today celebrated the Buddha's birthday as well as Buddha's attainment of Buddhahood and Buddha's final acceptance of Mahaparinirvana at Kushinagar. So what would be a message to the disturbed world that we are currently in? As I said, in context to India and Pakistan. Yeah, as I said, Buddha's message of peace, or in Sanskrit, if I may say so, Karuna and Maitreya, or especially the Ahimsa part, which is so relevant in today's world, which is so required in today's world. And our forefather, our father of the nation, Mahatma Gandhi ji, also used to follow the same principle, and it is so relevant and it is so vividly required in today's world. As you just now you have seen that there was a disturbance, there was a amount of aggression between our neighboring country Pakistan and India, and we ultimately we came to know that the war has been ceased, which is so good. Yes, there were some wrong things that have been committed by the neighbors. We understand that. We agree to that. Those families who have lost their near and dear ones, that is a sad thing. But overall, we as India, a leading nation, that we need to take these messages of Buddha and messages of Mahatma Gandhi to the world as a whole. तो बुद्ध पूर्णिमा इसलिए मनाया जाता है कि बौद्ध धर्म में ऐसे माना जाता है कि भगवान बुद्ध का आज ही दिन में लुम्बिनी वन में ना जन्म हुआ था। तो आज ही के दिन में जन्म भी हुआ था और आज के दिन में उसका ज्ञान प्राप्ति भी हुआ, माने बुद्धत्व तो प्राप्त हुआ। तो बौद्ध वृक्ष, वो बौद्ध गया में जो बौद्ध वृक्ष के नीचे उन्होंने 6 साल तक तपस्या करने के बाद उसको ज्ञान प्राप्ति हुआ, बौद्धत्व प्राप्त हुआ। दैन दूसरा वाला तीसरी वाला ऐसे मानता है कि आज के दिन वो महापरिनिर्वाण हुआ, यानी उन्होंने अपने जो 80 के वर्ष में उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया। तो ये दिन मतलब 3 चीज़ आज
हम लोग मानते हैं कि एक ही दिन में हुआ था। तो इसलिए जितने भी बौद्ध धर्म के लिए जो बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत ही खास है और अच्छा मानते हैं। तो यही मतलब मैंने हम लोग मतलब ऐसे मानते हैं कि अगर हम लोग पूजा पाठ करेंगे, जो मतलब करा वगैरह करेंगे, तो हम लोग उसका पुण्य भी मतलब डबल हो जाता है। और उस तरह हम पाप भी करेंगे तो पाप भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये होली मतलब एक दिन है। तो ऐसे चाहते हैं कि आप लोग भी मतलब आज के दिन यहाँ आके उन्होंने आप सभी ने यहाँ आके आपने वक्त दिया, यहाँ पर आपने मतलब समय को यहाँ पर समर्पित किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा काम करें, मतलब लोगों को मतलब भगवान बुद्ध की टीचिंग्स को ना मतलब दुनिया तक पहुँचाए। जो भगवान बुद्ध ने जो शांति की रास्ता दिखाया उसमें आप भी चले, और वही कहना चाहता हूँ। सर, आज के दिन में आपने यहाँ गुम्बा मंदिर में क्या क्या कार्यक्रम कराया है? गुम्बा मंदिर में वैसे तो कल से शुरू हुआ था, मतलब 3 दिन का प्रोग्राम था, कल परसों से ना। तो ये हर साल होते हैं। तो मैं आपकी जितने भी ये न्यूज़ चैनल के थ्रू मैं कहना चाहता हूँ कि ये जब भी बुद्ध पूर्णिमा होते हैं यहाँ पर ताओ मठ की ओर से यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जब इस तरह के प्रोग्राम मतलब आयोजित किया जाता है तो हमारी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो कुछ अच्छा चीज़ में मतलब बातचीत हो जाओ ना। तो आज कल जो तारा देवी की उसमें छलांग रखा था, लाइफ लॉन्ग एम्पावरमेंट इनिशिएशन बोलते हैं, वो रखा था। और आज भगवान बुद्ध के जो जन्म के बारे में, उसके लाइफ के बारे में रिंपोचे ने बताया, और उसका अनुवाद करने के लिए श्री कल्टन सर यहाँ पर थे। तो उन सब की मदद से ये हुआ था, मतलब उसका प्रचार हुआ था। तो और बीच में हमारा मठ की तरफ से ये भी होते कि अगर यहाँ पर आए तो जितने भी श्रद्धालु लोग हैं, डिवोटीज है, उन सब के लिए हमारी तरफ से यही कोशिश रहती है कि उन सबको मतलब पानी, चाय ये सब मतलब प्रदान किया जाए ना, ये होता है।